Okay, hello student. Today we are going to discuss a spherical mirror. A spherical mirror We are going to discuss this topic. Okay. This is the topic for discussion today, a spherical mirror. And in a spherical mirror, we are going to discuss several points like that. First point is the sign convention. The second point is the rule of image formation. The third point is mirror formula. The fourth point is nature of image. The fifth point is magnification. And now the last point regarding the spherical mirror is motion of an object and its image. So these are the objective for discussion today. Again listen me. Today we are going to discuss the topic spherical mirror, and there are several points for discussion. First, sign convention. The second, rule of image formation, and the third, mirror formula, and four, nature of image, and five, magnification, and last point for discussion is motion of an object and its image. Dear student, these are the very important points for discussion, and we have already discussed in your previous classes. So just we are going to revise these topics today in very short and in concrete way. Okay. So now please wait. So first of all, according to my order, I am going to discuss sign convention. Sign convention. Sign convention, एक्चुअली ये साइन कन्वेंशन जो वर्ड है ये यूज होता है डिस्टेंस के लिए. भाई कोई भी मिरर है, मान लिया कहीं पर कोई मिरर रखा हुआ है, जैसे सपोज करो कि ये दो तरह का हमारा स्फेरिकल मिरर होता है. ठीक है, ये पहला जो मिरर होता है ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है, एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर एक्चुअली ये दोनों ही मिरर, चूंकि स्फेरिकल मिरर है मतलब किसी स्फीयर को काट के बनाया गया है इसको. तो मान लिया ये कोई स्फीयर का पार्ट है, तो इसको बाहर से यदि हम पेंट कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर बना. और यदि इस स्फेरिकल मिरर को अंदर से सिल्वर्ड किया जाए, देने के कॉन्वेक्स मिरर बना. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं. इसमें सबसे पहले तो ये किसी स्फीयर से निकला हुआ पार्ट है, तो ये उसका सेंटर कहलाया.
भाई ये उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ, मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसको हम लोग पोल कहते हैं, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लेट दिस इज द पोल। ओके, इसमें एक और पॉइंट है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आता है, दिस रे इज पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जहां पर काटेगा, this point is called focus. These 3 points are very important in a spherical mirror. पहला आपका पोल हो गया। पोल जो है ये भी सेंटर है, बट ये सेंटर ऑफ ए स्फीयर नहीं है। पोल जो है वो सेंटर ऑफ मिरर है, वो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट लाइज ऑन द सरफेस, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है ना। और ये जो सेंटर है ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर के पार्ट को हमने मिरर बनाया है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मिरर, एंड व्हेन ए पैरेलल रे कट टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिगार्डिंग ए कॉन्केव मिरर, then this point is called the focus of that mirror. Similarly, all 3 points can be defined here in convex mirror, but this point is very basic and you know it very well. I think that there is no need to discussion again by again these simple points. So dear student, the main point is that in sign convention we are going to measure the distance of an object from a mirror. So how to measure the distance? It is very important. So suppose this is any, you can take any mirror like this is a concave mirror, Then regarding the sign convention, the first point, let this is the principal axis. Principal axis. And here is the center of mirror, here focus is of the mirror, this is pole. And suppose you are going to keep a object here. Object. This is an object. Okay. So now, if you are going to measure the distance of any point, like what is the distance of focus, what is the distance of center, what is the distance of object. So distance can be measured with respect to a reference point. So here the pole is a reference point. So all distances are measured from pole. This is a first point regarding the sign convention. All distances are measured from pole. All distances are measured from pole in an spherical mirror. In a spherical mirror. Okay? So this is first point. The second point is that here, suppose for the formation of image, we can take incident ray in this direction from left to right. So in the direction of incident ray, the distance is positive, and opposite to the direction of incident ray, the direction is negative. Here in concave mirror, the incident ray will come from left to right. So any distances is measured from left to right is taken as positive, and opposite to that is taken as negative. Okay. So now the second, perpendicular to the principal axis, here the upward direction is taken as positive, and here the downward direction is taken as negative. This is the sign convention. So here the second very important point, कि along parallel axis, along principal axis, the distance measured in the direction of
incidence ray is taken as positive and opposite to incident ray is taken as negative. Again listen me students कि along principal axis मतलब principal axis के डायरेक्शन में यदि हम बात कर रहे हैं तो the distance measured in the direction of incident ray के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे भाई इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन से आएगा, लेफ्ट से राइट आएगा, तो लेफ्ट से राइट। अब कोई बच्चा कहेगा सर राइट से लेफ्ट क्यों नहीं आएगा, तो अरे भाई राइट से लेफ्ट कहां से आएगा, आप रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हो, आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हो, तो ये राइट से लेफ्ट यदि कोई रे आए तो क्या दैट रे कैन फॉर्म एन इमेज, इधर तो सिल्वर्ड पार्ट है, तो इंसिडेंट रे जब भी आएगा तो उस पार्ट पे आएगा ना जो पार्ट सिल्वर्ड नहीं है, तो उस पार्ट पर आएगा तो लेफ्ट से राइट आएगा, लेफ्ट से राइट आएगा तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव हो गया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव हो गया। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस यदि बात करें हम तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट कि यू पीपुल आर eligible, you people are capable to do it. So I think that please wait. I'm just going to clear the sign convention with the help of a numerical problem. So listen. Suppose problem based on sign convention. Problem based on sign convention. Okay. Problem है हमारा कि suppose this is a principal axis of two mirrors. और एक मिरर जो है आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, ये एक कॉनकेव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज 30 cm है and here a object is kept. The height of object is taken as 1 cm, 2 cm, 3 cm. Okay, 3 cm. And here the focal length given of these two mirrors. Focal length is given of two mirror is let 30 centimeter and 20 centimeter. This is the focal length F1 and F2. So for I find the position of image, find the position of image, find the position of an image after two reflection. On given two mirror. Okay, first on convex, then on
Okay. So this is a very good problem. There are two mirrors. One is concave and the second is convex, and the focal length of these two are 30 cm and 20 cm respectively. Okay, the f1 is 20 cm actually and f2 is 30 cm. Okay, fine. And this is the 3 cm, 15 cm. Okay, this distance is 15 cm. This distance is actually data should be sufficient, 15 cm. Okay, and here this distance is 50 cm, not 30. 50 cm. And the focal length are 20 cm and 30 cm. 20 cm for this will be 20 cm. 20 cm and this will be the 30 cm. The data problems are very important to get a very good answer after solving. So now suppose find the position of an image after two reflection on given two mirror, first on convex then on concave. First of all, we are going to find the image due to this mirror in convex mirror. So according to this mirror, we are going to write here mirror formula. So we just discuss later. Mirror formula is 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. This is mirror formula. Okay. Now the image due to a reflection, on convex mirror. So 1 by V plus 1 by the object distance is negative here because the direction of incident ray is like this. So opposite to the direction of incident ray, the distance will be negative. So this is the minus 15. 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. The focal length of this will be in this side, then 1 by 30. Okay. So 1 by V can be written as 1 by 15 plus 1 by 30. Now 30. So 2 plus 1. 1 by 10. So V equal to plus 10 cm. Okay. Okay. Now, image after second reflection on concave mirror. Okay. So here, what is the U? Actually, the image formed due to this mirror. इसके चलते जो image form हुआ है, वो उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि जो रे आएगा वो रे तो यही रे वहां पर जाकर के टकराएगा, तो इसका जो इमेज हो गया वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया तो भाई यहां से 10 cm दूर बना है और ये 50 है तो 60 हो गया। और चूंकि इस मिरर पर बात करने जा रहे हैं तो इसके लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ है, अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे? U इक्वल टू 50 प्लस 10 माइनस 60 cm एंड F कैन बी रिटन एज, उसका F तो इस तरफ ही आएगा तो ये भी नेगेटिव ही आ जाएगा भाई। F क्या आ जाएगा? माइनस 20 cm। सो 1 by V प्लस 1 by U equal to 1 by F. So 1 by V equal to 1 by 60 minus 1 by 20. So here the 60 is LCM and 1 minus 3. So minus 1 by 30.
Okay, minus 2 by 60, so minus 1 by 30. So V can be written as minus 30 cm. Answer. This is the position of image. Okay. And what is the size of image? What is the size of image? So size of image, first of all, we are going to find the image size due to the reflection on convex mirror. इस convex mirror पर जो reflection हुआ है और उसके वजह से जो इमेज बना है वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बना है। तो हम चाहते हैं कि भाई सबसे पहले ये हो कि उस इमेज का साइज देखा जाए। तो इमेज का साइज यदि I1 की बात करें, फॉर I1 बात करें तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस V बाई यू। देन व्हाट इज माइनस V बाई यू? V कितना आया है? 10 आया है, तो माइनस 10 बाई यू कितना था उसका? 15 था। यू उसका क्या था? 15 माइनस 15 था, माइनस 15। ये कट गया, ये 2 और ये 3। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 इंटू 2 बाई 3। ये कट गया, सो 2 cm। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज I1। I1 का मतलब हुआ कि इमेज जो इसके वजह से फॉर्म हुआ है। अब ये जो साइज हो गया ये उसके लिए ऑब्जेक्ट साइज हो गया, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट साइज हुआ तो फिर हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज फॉर I2, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 cm इक्वल टू माइनस V बाई यू। माइनस V, इसका V कितना आया है? फाइनल V तो आपका माइनस 30 आया है। सो माइनस 30 माइनस V बाई यू, तो माइनस माइनस प्लस यू। यू कितना है भाई? यू है उसका 60, यू है माइनस 60, यू है माइनस 60, माइनस 60। देन दिस विल बी द 2 एंड HI इक्वल टू माइनस 1 cm. Okay, so this is the final answer. The image distance is, this is very good problem on the basis of sin scheme. आप यहां देख रहे हैं ना sin scheme, इसके लिए ये डायरेक्शन मेन बेसिक जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि इस मिरर के लिए ये डायरेक्शन आपका हो गया पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव और इसके अपोजिट क्या हुआ? नेगेटिव। और जब इस मिरर पर आप आ रहे हैं तो इसके लिए ये डायरेक्शन बन गया पॉजिटिव और ये डायरेक्शन बन गया नेगेटिव। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर पॉइंट एज पर आवर द सीरियल। द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम in a mirror. Okay. So now the second point is ray diagram. According to our objective, the first point is sign convention, and this is the second point, the rule of image formation. या इसी को आप कह सकते हैं रे डायग्राम। ठीक है कि भाई रे डायग्राम आप कैसे देते हैं? तो रे डायग्राम के लिए बहुत सिंपल सी बात करने जाएंगे हम कि चाहे कोई भी मिरर हो, नॉट ए स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर भी हो सकता है, या चलिए अभी तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में भी इमेज बनेगा।
तो चाहे कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट हो, यदि हम इमेज बनने की बात कर रहे हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो जो कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं यही कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई भी मिरर लिया, आपने ये कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है ना, और इस कॉनकेव मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। आई डोंट नो कि वेयर इज फोकस, वेयर इज सेंटर, कुछ में नहीं पता है। मान लो चलो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पर फोकस है, तो आपने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिया। भाई ऑब्जेक्ट कहाँ, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है कि भाई आप तो या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें, या आप इसके हाइट में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो यदि यह आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यदि ड्रॉ करनी है कहां होगा, तो इस ऑब्जेक्ट से दो रे हमको लेना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए। कितने रे लेने पड़ेंगे? दो रे लेने पड़ेंगे रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब हम दो रे रिफ्लेक्शन के लिए लेंगे तो कौन कौन से रे लेंगे? भाई इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे बहुत सारे रे जा रहे हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे रे जा रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे भी इस तरह से जा रहे हैं। तो भाई कौन से दो रे लेंगे, वही हमारा इमेज का फॉर्मेशन डिसाइड करेगा। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो दो रे लेना है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई पहला रे आप ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के लो। इससे फायदा क्या हुआ कि जब रे यहां पर आएगा तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई 0 हो जाएगा, क्योंकि यही लाइन नॉर्मल होगा, आर भी 0 हो जाएगा, तो ये सीधे यहां पे लौट जाएगा। और दूसरा रे आप चाहे तो किसी डायरेक्शन में, ये वेल डिफाइंड पाथ मालूम है पहले रे का, दूसरा रे आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो मान लिया किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले सकते हैं, तो आपने ये एक रे लिया, ठीक है। अब देखना है कि भाई ये रे रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑपरेट करने के लिए हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, तो आप नॉर्मल यहां सेंटर से खींच सकते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो फिर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्शन के लिए ये एंगल इस तरह से बनाएगा, ये एंगल आर बनाएगा और यहां कहीं कटेगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए हम आपको इमेज बनाने के लिए सिंपल सी बात करने जा रहे हैं कि जब भी इमेज बनाना हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप दो रे लीजिए। एक रे तो लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, वो वेल डिफाइंड पाथ मालूम है, और दूसरा रे जो लीजिए वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है ना। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हुई। यदि कोई मान लिया जाए दूसरा, ये सपोज अब की बार हम कन्वेक्स में बात करने जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसका सेंटर कहीं इधर होगा, इसका फोकस कहीं इधर होगा, यहां कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के साइज में हमको इंटरेस्ट है, इसके हाइट में इंटरेस्ट है, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने में हम इसके जो टॉप का पॉइंट है उसी को ऑब्जेक्ट मान करके इमेज बनाएंगे। इस पॉइंट का यदि हमको इमेज मिल गया, तो इसके नीचे के जितने करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उस सबका सिमिलरली इमेज बनता चला जाएगा और एक लीनियर ऑब्जेक्ट हम खींच सकते हैं। तो यहां से मान लिया एक जो रे लेने जा रहे हैं, वो रे आप ले सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई पूछेगा क्यों भाई, तो बोलिए क्योंकि इसका वेल डिफाइंड पाथ मालूम है, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो निश्चित रूप से ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा, भला रे हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल के पैरेलल एक्सिस का रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है वो फोकस कहलाता है। दूसरा, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब तो चलो मान लीजिए यहां पर आप ले रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में ले लो। आप सपोज आप यहां पे लिया ऐसे, ठीक है, लेट दिस एंगल इज आई, क्योंकि इसका नॉर्मल यही हुआ, तो इसी डायरेक्शन में ये इतना ही एंगल बना के ये लौटेगा, लेट दिस इज आर। तो भाई ये भी ऐसे इधर से आ रहा होगा, तो ये दोनों पॉइंट यहां पे कट रहे हैं, ये दोनों रहे, तो यहां पर इसका इमेज बन गया।
ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन में सिंपल सी बात लेंगे कि वी कंसीडर ओनली टू रे, ठीक है ना, दो रे हम कंसीडर करेंगे और वो दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डिस्टर्ब होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा वहां पर इमेज बनेगा, ठीक है ना। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग कितने रे लेंगे? दो रे लेंगे। सो फॉर इमेज यहां पर रूल 1 लिख रहे हैं, कंसीडर ओनली टू रेज, ठीक है ना। पहला ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इमेज इज फॉर्म एट ए पॉइंट वेयर टू रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज after reflection by a mirror. Okay, fine. सो दूसरा पॉइंट भी आप जान गए कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है। फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं कि इमेज फॉर्म करने के लिए दो रे लीजिएगा। एक रे जो है वेल डिफाइंड पाथ सर्च करिएगा, यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ले लीजिए, और दूसरा किसी भी डायरेक्शन में। और यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके हाइट में इंटरेस्ट है आपको, आप उसके हाइट को लेकर के इमेज बनाना चाहते हैं, तो फिर टॉप पॉइंट से रे लीजिएगा, और वहां से भी रे लीजिएगा तो एक पैरेलल ले लीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि उसका वेल डिफाइंड पाथ पता है, और दूसरा फिर आप अपने हिसाब से किसी भी सिमेट्रिकल डायरेक्शन में लेके इमेज बना सकते हैं, ठीक है ना। सो वेट प्लीज। Now, the third point is, according to our objective, the third point is nature of image. देखिए यहाँ पे नीट एग्जाम के लिए आप रे डायग्राम बना करके और फिर आप इमेज का नेचर बताएंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो नेचर ऑफ इमेज से क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट इसका कहीं यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में, इसलिए आपको इसके रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सके, ठीक है ना। सो नेचर ऑफ इमेज के लिए हम बात करेंगे, तो चूंकि स्फेरिकल मिरर ही मेन टॉपिक है हमारा, तो उसमें हम पहला मान लिया कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में देखिए नेचर ऑफ इमेज बताने जा रहे हैं हम, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है, ठीक है। इधर मान लिया जाए इसका कहीं सेंटर होगा, इधर कहीं फोकस होगा, यह आपका पोल हो गया। इंसिडेंट रे इधर जाएगी तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, तो इधर मान लिया जाए माइनस इंफिनिटी है, और इधर मान लिया जाए कहीं प्लस इंफिनिटी है, ठीक है ना। याद करने का सबसे सिंपल तरीका कि आप ये मान लिया यहां से यहां के बीच में रीजन 1 है, रीजन 1, ठीक है ना। इसको R1 कह लेते हैं शॉर्ट में। रीजन 1 लिखने का क्या फायदा, यहां से यहां तक ये हो गया रीजन 2, यहां से यहां तक हो गया रीजन 3, और इधर जो हो गया ये आपका रीजन 4 हो गया। ये 4 रीजन में आपने डिवाइड कर दिया। अब यहां पर बच्चे पूछते हैं, सर यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे
कि एक्चुअली ये पोल और माइनस प्लस इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, तो वो भी रखेंगे, हम आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं इस पे बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप नेचर ऑफ इमेज बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए रीजन 1 R1, रीजन 2 R2, रीजन 3 R3 और रीजन 4 R4। ये 4 रीजन के लिए हम नेचर ऑफ इमेज बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए रीजन 1 में यदि मतलब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं रखा हुआ, ऑब्जेक्ट कहां है, माइनस इंफिनिटी और सेंटर के बीच में है, ठीक है ना। तो इसका इमेज जो बनेगा रियल बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर आ जाइए, यहां पर भी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन यहां पर मैग्नीफाइड बनेगा। ये नेचर जो है वो बदल जाएगा। एक्चुअली ये जो लिख रहे हैं हम ना, ये आपको तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये कैसे आप लिख रहे हैं, कहां से आया है। तो भाई ये आफ्टर कैलकुलेशन जो मेन मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला से कंपेयर किया गया है कि इस रेंज में रहेगा। उसमें जो टर्म है उसमें क्या क्या टर्म है, यू है, भी है, एफ है, यही टर्म है ना। और यू एंड वी और एफ के टर्म में आप हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, ये करते हैं। इस कंपैरिजन से हम पता किए हैं कि भाई इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, नहीं मतलब रियल होगा या वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, स्मॉल होगा या मैग्नीफाइड होगा। तो ये जो आपका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपका डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के थ्रू आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा ये कैरेक्टर हो गया, तीसरा यदि फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, यही एक पॉइंट है जहां पर आपको मिलेगा इरेक्ट इमेज। क्या मिलेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा और वर्चुअल मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्चुअल, वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा और मैग्नीफाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीफाइड मिलेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ओके, मैग्नीफाइड मिलेगा, ठीक है ना। नाउ द लास्ट पॉइंट इज R4। पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई ये कैसे। तो इस केस में इमेज जो है ना, इस केस में यहां पर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, यहां ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हो जाएगा R4 रीजन में, ठीक है ना। तो इसके लिए रियल, इरेक्ट और स्मॉलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, ठीक है ना। ये कनकेव मिरर का नेचर ऑफ इमेज है और ये बड़ा आसान सा पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। 4 रीजन में बांट लीजिए, R1, R2, R3 एंड R4। और R1 में देख लीजिए रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर द ऑब्जेक्ट। R2 में रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। R3 में वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड R4 में रियल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आ जाती है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। द सेकंड मिरर जो है वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स में भी हम चाहे तो 4 जोन बना सकते हैं, तो उसका भी जरा देख लेते हैं। इसको मिटा दे पहले।
दूसरा जो पॉइंट था वो किसके लिए था, कॉन्वेक्स के लिए था, यही ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भाई ये चलिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। इंसिडेंट रे तो इधर से आएगी ना, इधर से इंसिडेंट रे आएगा तो इस डायरेक्शन में इधर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और इधर जो होगा ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। ओके, ये आपका फोर हो गया, ठीक है। तो ये रीजन 1 R1, ये रीजन 2 R2, ये रीजन 3 R3 और ये रीजन R4। अब फिर से आपको यहां पर इमेज की बातें करनी पड़ेगी कि भाई इमेज यहां पर कैसे बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, लेकिन जब रियल ऑब्जेक्ट हो तो ही वर्चुअल बनेगा। इसलिए एक प्रॉपर्टी तो बहुत इसका क्लियर है, लेकिन आराम से धीरे धीरे, ताकि आपको क्लियर हो। R1, R2, R3, R4, ठीक है ना, यही 4 रीजन है, ठीक है, यही 4 रीजन है जिसमें हम इमेज की बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। सो भाई पहला यदि R1 की बात करें तो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर होगा। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर, ठीक है ना। पहला पॉइंट R1, मतलब यदि ऑब्जेक्ट इस रीजन में रखा हुआ है तो इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर, ठीक है ना। एंड द सेकेंड रीजन रियल इरेक्ट एंड एनलार्ज, रियल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, ठीक है ना। रियल होगा सेकंड रीजन का मतलब जब इधर हो, मतलब यहां पर देखिए ना, ये 3 जो केस है ना, ये तीनों केस ध्यान दीजिएगा, ये तीनों केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तीनों केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। केवल रियल ऑब्जेक्ट यही है, पहले वाले केस में रियल ऑब्जेक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि भाई यदि रियल ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन देखिए वर्चुअल हुआ तो आ गया ना, रियल आ गया, इरेक्ट आ गया, मैग्नीफाइड आ गया। तो तीसरा रीजन है R3, R3 में वर्चुअल इन्वर्टेड एनलार्ज, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है ना। R3 में वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इन्वर्टेड स्मॉलर लास्ट में, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, ठीक है ना। देखिए अगेन लिसन कि यहां पर भी हमने जोन बना दिया है, यहां पर भी 4 जोन बनाया है। यहां से R1 जोन है, इसमें रियल ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट यहाँ पोल से इधर रखा जाएगा ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यदि R1 में ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर होगा। R2 में है तो रियल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, R3 में है तो वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड R4 में है तो वर्चुअल, इन्वर्टेड, स्मॉलर। तो दीज आर स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इमेज। तो आपको चाहिए कि आप इस पॉइंट को याद रखें ताकि प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीट में डायरेक्टली आपसे नेचर पूछा जाए, नेचर का सवाल पूछा जाए। हाँ, नेचर का यूज हो सकता है, नेचर का यूज हो सकता है कि नेचर दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आप साइन कंसीडर कर सकें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिया आप निकल जाए तो नेचर का साइन कंसीडर, नेचर बताएं, तो ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज थर्ड पॉइंट।
Now the fourth point is mirror formula. The fourth point is mirror formula. मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपका क्या है? मिरर फॉर्मूला आपका है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इसमें v जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f जो है फोकल लेंथ है। यहां पर एक फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन आता है f इक्वल टू r/2। सो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है ना। इसमें सवाल आपको दिया रहेगा, इमेज दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ पूछेगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, या मान लिया कोई भी। हमारे पास कितने टर्म है देखिए ना, u है, v है, f है, ठीक है ना। ये 3 टर्म है और ये f जो है वो r से रिलेटेड है डायरेक्टली, इसलिए r को लिखने की जरूरत नहीं है, u v f ही लिखे। इसमें से कोई भी 2 मालूम है, u v मालूम है तो f निकल जाएगा और साथ साथ r भी निकल जाएगा, और यदि ये दोनों मालूम है तो u निकल जाएगा। तो यहां से हम इजीली सवाल बना सकते हैं। बस जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक जो होता है जिसमें सवाल के आंसर नहीं मैच करते हैं, उसका कारण सिर्फ होता है साइन एस्क्यू। तो साइन एस्क्यू को सही तरीके से यदि आप कंसीडर करेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला बहुत आसान सा चीज है और आई थिंक दैट कि इसमें आप कंफर्टेबल होंगे बनाने के लिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम जो होता है वो होता है दूसरे पार्ट में, जो 5वां पार्ट हमने आपको बताया था, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन ये हमारे ऑब्जेक्टिव का 5th पॉइंट था, मैग्निफिकेशन। यहां पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो यहां पर देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा जहां से आप इजीली प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैग्निफिकेशन में देखिए 3 तरह का मैग्निफिकेशन होगा, 3 तरह का मैग्निफिकेशन होगा। एक तो होगा कि भाई ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई मिरर है, कॉन्केव है, ऐसे रखा हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। तो जब परपेंडिकुलर रखा गया है तो भाई इसकी इमेज की साइज के साथ कंपेयर करना है। तो ये कैसा कंपेरिजन हुआ? ये तो लेटरल कंपेरिजन हुआ कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, परपेंडिकुलर इमेज बनेगा। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट ho है, और मान लिया इसका इमेज कहीं बन रहा है, इसका इमेज कहीं भी बन रहा है, एनीवेयर मान लिया इमेज इसका बन रहा है, मान लिया सपोज करो यहां पर इमेज इसका बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड बन रहा है, जो भी बन रहा है, आई डोंट नो क्या बन रहा है, बट ये इमेज है। तो यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन का केस है। तो यहां पर पहला हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन। ये कब डिफरेंस? लेटरल मैग्निफिकेशन ये कब डिफाइन होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, then object is kept perpendicular to principal axis, ठीक है ना। इस केस में डिफाइन होता है, और इस केस में हम लिखते हैं hi/ho इक्वल टू -v/a, ओके, ठीक है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इस केस में हो सकता है कि ये हमारा मिरर है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मतलब along the principal axis object is kept along प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस केस में हम जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, उस मैग्निफिकेशन का हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन करते हैं, और ये मान लो ho है, तो फिर यहां पर हम लिखेंगे m इक्वल टू hi/ho। मतलब यहां पर क्या है ना कि ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से रखा हुआ है और इमेज भी इसी तरह से बन रहा है, मतलब एलोंग इमेज ऑल्सो इमेज इज ऑल्सो
image is also formed here along the principal axis. So this is the case of longitudinal magnification. तो m equal to hi by ho, और यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा b स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा आफ्टर ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन. ओके, ये दूसरा मैग्निफिकेशन हुआ. तीसरा मैग्निफिकेशन आपका एक पॉइंट है, इधर तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हो सकता है कैमरा फोकस ना करे, इसलिए यहाँ मिटाना पड़ेगा. द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द मैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट to solve the problem within 20 to 30 seconds, if you know that case. जैसे सपोज करिए कि when this is a mirror और यहां पर कोई एरिया रखा हुआ है इस तरह से एरिया. अब इसका इमेज यहां बना, इमेज यहां बना, इस तरह से बना. ये जो एरिया है ना, ये मिरर के जस्ट ऐसे सामने रखा हुआ है. मतलब मिरर का कर्वेचर बहुत स्मॉल है. एक्चुअली सारे जो लॉज हैं, सारे फॉर्मूले हैं ट्रैक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं, तो मान लिया जाए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस तरह से एरिया रखा हुआ है, इस तरह से एरिया रखा हुआ है. ठीक है ना, ये हमारा एरिया इस तरह से. ऐसे एरिया नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, एकदम ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. उस केस में आप देखिए कि ये जो साइड है, ये साइड का मैग्निफिकेशन जो है वो लेटरल मैग्निफिकेशन का केस बन जाएगा. ये लेटरल मैग्निफिकेशन का केस बन जाएगा, और ये जो बनेगा वो लॉन्गिट्यूडनल, ये भी लेटरल का ही बन जाएगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है. ये दोनों साइड परपेंडिकुलर हैं. जैसे मान लिया जाए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऐसे रखा हुआ है एरिया, तो भाई देखिए ना, ये साइड भी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस का और ये साइड भी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस का. दोनों केस तो बन जाएंगे वही ना, दोनों केस लेटरल मैग्निफिकेशन के बन जाएंगे. तो हाइट ऑफ, चूंकि m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो हाइट ऑफ इमेज बराबर m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा. तो यदि हम मान लें कि इसका b है और ये a है, तो ये हो जाएगा ma और ये हो जाएगा mb. तो एरिया मैग्निफिकेशन बराबर इमेज ऑफ एरिया, सो m इंटू a गुने m इंटू बी बाई a इंटू बी, द रियल एरिया. ये a b कट जाएगा, सो m स्क्वायर आ जाएगा. सो एरिया का यदि मैग्निफिकेशन आपको बताना है तो आप डायरेक्टली m स्क्वायर कहिएगा. यहां पर आपको कुछ करना, मान लीजिए इस तरह से पूछेगा कि भाई ये एरिया एक रखा हुआ है, लेकिन उस एरिया में कंडीशन है कि इसके दोनों साइड जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है. बोथ साइड आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. तो यहां से तीसरे तरह का मैग्निफिकेशन है. ये तीसरा मैग्निफिकेशन का नाम क्या है? एरिया मैग्निफिकेशन. ओके, ठीक है ना. सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर. और यहां से सवाल इजली बनेगा, बनाए भी होंगे. वायर दिया था यू शेप का, इस तरह से उसका पेरीमीटर पूछा जाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा कि पेरीमीटर कितना होगा, बताइए हमको. तो वही सेम एरिया इक्वल टू m स्क्वायर कर लेंगे आप. ठीक है ना. मान लिया कोई स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, पूछेगा कि भाई उसका इस साइड 2 सेंटीमीटर है, तो पूछेगा इमेज का एरिया बताओ, बन जाएगा. सिंपल, डायरेक्टली बन जाएगा. ठीक है ना. So now the last point is remaining here. So यहाँ देखते हैं. ठीक है. इसका वर्कआउट आपको देंगे हम, उसको बनाइएगा, और जो भी वर्कआउट बनाएंगे तभी फायदा होगा ये सब बताने का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ना, ये बैकबोन होता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का. आप कॉन्सेप्ट कितना भी सीख लीजिए, लेकिन वर्कआउट नहीं करिएगा तो आपको फिर करने की आदत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको ध्यान देना है. ठीक है ना बच्चों. सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज मोशन ऑफ an object
थे, मान लिया कोई मिरर है, कनकेव है, कन्वेक्स है, जो भी है, ये मान लिया ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो दो तरह से ऑब्जेक्ट का मोशन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और इसका इमेज का ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, VOM को पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो मिरर रेस्ट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि आपको VOM लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, आप ऐसे लिख सकते हैं। द सेकेंड वेलोसिटी इज इमेज वेलोसिटी। सो नाउ मान लिया जाए इसका इमेज कहीं बन रहा हो, आई डोंट नो कहां बन रहा है कहां नहीं, मान लिया ये इमेज बन रहा है, इमेज ये ऑब्जेक्ट है और इसका ये इमेज है, और ये इमेज का मान लिया इधर मोशन हो, भी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। आफ्टर द डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मतलब हुआ VOM जो है ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हुआ, और इमेज वेलोसिटी का मतलब हुआ VIM हुआ, ठीक है ना। सो VOM बराबर माइनस ऑफ M इंटू VIM, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, और ये डिफरेंशिएशन के बाद डेराइव हुआ है। आफ्टर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में आप कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां से लेकर के और उसको जब करिएगा तो आपका ही आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस M इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, नहीं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं टारगेट है हमारा, टारगेट तो है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस M स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। दिस फॉर्मूला ओके। नाउ ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस M स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। ये बात हुई, ठीक है। अब यहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस M स्क्वायर, M is the lateral magnification, and here the velocity of object minus velocity of mirror. This is the vector equation to solve the problem on the basis of velocity of image and velocity of mirror. Okay. So now the second thing is कि यदि मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, मान लिया ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, इमेज भी इस तरह से मूव कर रहा होता या उधर कर रहा होता, आई डोंट नो द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। Then how to write the relation between these two velocity, क्योंकि यही दो इक्वेशन यदि आप जान रहे हैं, ये केस 1 हो गया, ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया, और यदि आप ये दोनों केस जान रहे हो तो भी किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो आप वेलोसिटी आराम से निकालोगे, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये मिरर है एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सेम डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहां पर कोई साइन नहीं आ रहा है, और ये वाई डायरेक्शन के लिए हुआ और ये आपका एक्स डायरेक्शन के लिए हुआ। आप चाहे तो एक्स डायरेक्शन के लिए ये हुआ आपका एक्स डायरेक्शन के लिए। ये दोनों डायरेक्शन में यदि आपका वेलोसिटी पता है तो आप निकाल लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं इमेज का, दैट फार्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। और यदि आप यहां पर निकालने जा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। यहां से सवाल आपका बनेगा। अंतर इन दोनों फॉर्मूला में केवल दो है कि जब वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो केवल एम आ रहा है और एक्स डायरेक्शन में एम स्क्वायर आ रहा है। दूसरा, इसमें पॉजिटिव साइन है और उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर के पहले, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहां से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम आपको बना के दिखा रहे हैं, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, इससे आप सीख लेंगे। ये मिटाने जा रहे हैं हम। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा सवाल आपको एक देने जा रहे हैं और उस सवाल को बनाइएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम है हमारा कि एक मिरर है जिससे 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है। एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये कितना दूर है यहां से? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस फिगर में दोनों मोशन में है, मिरर भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। मिरर का मोशन जो है वो राइट डायरेक्शन में है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ये 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अलोंग द एक्स एक्सिस दिखलाया गया है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए कितना अच्छा सवाल है और कितना आराम से बनेगा ये। सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन है उसमें यू क्या है आपका? -15 cm है ना जी, ठीक है। And I think that the radius or focal length should be given in this problem. Focal length is also 10 cm. Yes, focal length is given in this problem 10 centimeter. So u is -15 cm and f is -10 cm. कॉनकेव मिरर है तो v इक्वल टू वाट पहले ये निकालिए, 1/v माइनस 1/50 इक्वल टू -1/10। सो 1/v इक्वल टू 1/50 माइनस 1/10। सो 30, सो 2 minus 3 minus 1/30. So v can be written as -30 सेंटीमीटर। तो यहां से ये फायदा, क्या फायदा है? एक्चुअली हमारे फॉर्मूला में स्मॉल एम की लेटरल मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ रही थी, तो यहां पर उस मैग्निफिकेशन को निकालना पड़ेगा आपको। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एम बराबर आ जाएगा आपका
माइनस v बाई u, सो माइनस 30 बाई u कितना है 15 है, 15 है, सो माइनस v बाई u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये u 15, तो माइनस 2 हो जाएगा, ये m हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस ऑफ m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यही है ना। तो यहां से देखिए वेक्टर इक्वेशन है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस m स्क्वायर 4 आ गया आपका, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कितना आ गया जी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर पॉजिटिव ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा माइनस 10, ठीक है ना, माइनस 1, तो ये कितना हो गया जी आपका 1 माइनस 4 इंटू माइनस 11, सो 1 प्लस 44 हो जाएगा, सो 45 मीटर पर सेकेंड answer of this questions. Okay, so then I think that the answer will be the answer of this question will be 45 meter per second. This is the answer of this question. Okay, fine. Okay, so now we have finished our objective in this lecture. This is the second lecture of ray optics, and after that we will continue in next class. Thank you so much.